मैम आवाज नहीं आ रही। Ma'am, you are not audible. Hello, everybody. So, in today's class, I'm going to start the remaining part of the molecular orbital theory. In last class, we have discussed the principles or the key features of the molecular orbital theory. So, according to the molecular orbital theory, the molecular orbitals are formed after the combination or overlapping of the atomic orbitals. And these molecular orbitals are called as these molecular orbitals are the two type bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbitals. Okay, there was some network issue. So I'm going to Anshuman, please share the PDF which I have sent you on WhatsApp group. Okay, so first of all, what is the bond order? Let's formation of मैम लैग हो रहा है मैम। the molecular orbital when the atomic orbitals combine, or you can say the atomic orbital combine to overlap. There is a formation of a molecular orbitals. These orbitals are of two type: a bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital provide stability to the molecule, and the energy of this bonding molecular orbital is less than the combining atomic orbital. Next, second type of molecular orbitals are the anti-bonding molecular orbital. Anti-bonding molecular orbital में जो energy of this anti-bonding molecular orbital is higher than the combining atomic orbital. So it provides or it imparts instability to the molecule. And the filling of the electron in these molecular orbitals takes place according to the three principle, that is a Pauli's exclusion law, a Bohr principle, and Hund's principle, which we have already discussed in last class. So come to the next topic, that is the bond order. What is bond order? देखिए bond order जो है वो that is calculated on the basis of the number of electrons present in the bonding molecular orbital and the number of electrons present in anti-bonding molecular orbital. So the bond order is equal to the number of electron in the bonding molecular orbital minus number of electron in the anti-bonding molecular orbital divided by 2. Or you can say half of the number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in the anti-bonding molecular orbital gives the bond order. And what is the significance of the bond order? Bond order of a molecule is a measure of the strength of the bond between two atoms. between two atoms जो bond strength है उसको measure करता है bond order कि bond का strength कितना है, because bond is formed between two atoms. So bond order, what is the relation between stability and bond order of a molecule?
Bond order and stability. See the positive value means +1 bond order means single bond. +2 bond order means double bond. 3 bond order means triple bond. So positive value of bond order reveals that the molecule exists. There is existence. This molecule will exist and it will be a stable molecule. Greater the value of bond order, greater is the stability of the molecule. जितना ज्यादा वैल्यू होगी बॉन्ड ऑर्डर की मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा. तो बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव है, इट मींस मॉलिक्यूल इज स्टेबल एंड इट विल एग्जिस्ट. व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज 0 मींस द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल. बिकॉज देखिए बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि देयर इज नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज्यादा होंगे तभी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, दैट इज ड्यू टू द ग्रेटर नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है. तो जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे देन द स्टेबल मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म, अदरवाइज एटॉमिक स्टेट में चला जाएगा. और अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब क्या है कि एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग दोनों इलेक्ट्रॉन से जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या है, दैट इज 0, एग्जैक्ट अपोजिट. क्योंकि रिपल्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट. So it will become 0. So molecule will not exist. Bond meaning of the bond order +1, +2, +3 indicates the molecule is formed by joining of 2 atoms by single bond, double bond, and triple bond respectively. Now, what is the relation between bond order and bond length? Bond length is inversely proportional to the bond order. Bond length जितनी कम होगी बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा होगा. बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने का मतलब बॉन्ड इज मोर स्टेबल. बॉन्ड लेंथ कम होने का मतलब बॉन्ड इज मोर स्टेबल. क्योंकि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा बिटवीन द एटम्स उतना ही बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी और उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा. जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो वीक बॉन्ड्स होंगे उनमें क्या होगा, वीक बॉन्ड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस, सो द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द एटम्स विल बी मोर. So you can see in this page that bond length of triple bond is 110 mm, double bond 121 mm, single bond 143 mm. Next is a bond order and bond dissociation energy. देखिए what is the relation between bond strength and bond dissociation energy? जितना strong bond होगा उतनी ही ज्यादा energy will be required to break the bond or to dissociate the bond. More stronger is the bond, higher is the dissociation energy. And strong strength of the bond depends on the value of the bond length, bond order. Means the higher the bond order, higher is the dissociation energy. So there is a directly proportional relationship between the bond order and dissociation energy. The triple bond ke liye energy is more, that is 945 kilojoule per mole. For the second bond order or the double bond, the dissociation energy is 498 kilojoule per mole, and for the first bond order or the single bond, the dissociation energy is 158 kilojoule per mole. So this is the relation between the bond order and the dissociation energy. Now come to the molecular orbital diagram. Ma'am. See in the molecular orbital diagram. Ma'am. You can see the relative energies of the first 10 molecular orbital diagram in increasing order of this. यानी कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक. Already I have told you in last class, from hydrogen to nitrogen means from atomic number electronic configuration from atomic number 1 to 7 or for electronic configuration 2 to 14. ठीक है. अब दोनों एटम कंबाइन कर गए तो इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे, पॉलीसेंट्रिक रीजन में रहेंगे. दोनों ऑर्बिटल कंबाइन करके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके एक क्या बनाएंगे,
मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन उस मॉलिकुलर ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करेंगे, मींस अ पॉलीसेंट्रिक रीजन. सो हाइड्रोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स. नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन, और तो जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन गया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 14. So again I am going to revise the energies of the different molecular orbitals. The sigma 1 is less than the sigma antibonding 1s, then sigma 2s, then sigma antibonding 2s, then pi 2px is equal to pi 2py is less than sigma 2pz. It is less than pi antibonding 2px, pi antibonding 2py, and less than sigma antibonding 2pz. And for oxygen to neon, sigma 1s is less than sigma antibonding 1s, means sigma 1s, sigma antibonding 1s, sigma 2s, sigma antibonding 2s, then sigma 2pz up to the 14 electrons. Energy of this pi p orbital, pi px and pi py, pi 2px, pi 2py is less than the sigma 2pz. But as the electron exceeds then the 14 electrons, जैसे 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, देन सिग्मा 2pz जो है वो आपका लोअर एनर्जी पे आता है. रीजन इसका क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो देन आई विल एक्सप्लेन यू. सिग्मा 2pz जो है वो आपका लोअर एनर्जी पर होगा, देन सिग्मा 2px, सिग्मा 2py, and empty bonding orbital or will remain same. So you can see the molecular orbital diagram. So first of all, you have to keep some points in your mind that these energy diagrams will be drawn in the increasing order of energy. You can see the arrow in the left side that is representing to the energy. Arrow is pointing upward. Means the orbitals are arranged in increasing order of energy. When you are going to draw the molecular orbital diagram, so these diagrams should be drawn in increasing order of energy. Means the lower energy orbital कहाँ होगा? सबसे नीचे, then उससे ज्यादा एनर्जी, then उससे ज्यादा एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी का टॉप पर, यानी कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल ऑन द बॉटम and highest energy orbital on the top. Now you can see AO is representing the atomic orbitals. Okay, MO is representing to the molecular orbital. तो जो आपके लेफ्ट में दो ऑर्बिटल बने हैं वो 1s जहां पर लिखा हुआ है, ये क्या है? These are the atomic orbitals. ये एटॉमिक ऑर्बिटल इससे जो लोअर एनर्जी पे बना है सिग्मा 1 है, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और इसी में ऊपर क्या बना है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल. देखिए नीचे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का लेवल जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से डाउन है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? मींस द एनर्जी ऑफ दिस मॉलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग BMO, bonding molecular orbital is less than the combining atomic orbital, जो आपको बता चुके पहले. तो जब आप ड्रॉ करोगे एनर्जी डायग्राम तो आपको क्या करना है? मॉलिकुलर ऑर्बिटल को हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर एनर्जी पे रखना है, और एंटी बॉन्डिंग को हमेशा किससे रखना है? एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर एनर्जी पे रखना है. इसके बाद नेक्स्ट इज 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी? 2s की. 2s में भी एटॉमिक ऑर्बिटल 2s, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड, बीच में आपके सिग्मा 2s बॉन्डिंग जो है वो नीचे बनेगा और एंटी बॉन्डिंग हायर एनर्जी में. इसके बाद 2p ऑर्बिटल, 2p ऑफ one atoms and 2p of another atom, one on the left side and 2. देखिए 2p ऑर्बिटल
contain or consists of 3 orbitals px, py and pz। तो ये तीन वही बने 2px, 2py, 2pz। इसी तरीके से दूसरे एटम का भी एटॉमिक ऑर्बिटल 2px, 2py, 2pz। अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल तीन कौन से हुए? पाई जो है वो अप टू नाइट्रोजन 40 इलेक्ट्रॉन तक, पाई 2px, पाई 2py, दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये आपके कहाँ है? लोअर एनर्जी पे, और इसके ऊपर आपका बॉन्डिंग सिग्मा 2pz। नेक्स्ट इज एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग आपके क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर एनर्जी पर है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से जो हायर एनर्जी पर है वो कौन सी? पहले का लोअर एनर्जी पर कौन सा है? पाई 2px एंड पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और उसके सबसे ऊपर जो है सिग्मा 2p, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz। The anti bonding will be represented by putting asterisks over the sigma or pi, whatever is a orbital। बॉन्डिंग को सिंपल लिखेंगे सिग्मा पाई डेल्टा, और एंटी बॉन्डिंग को एस्ट्रिक्स लगा देंगे। नाउ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए ये आपका ये किसके लिए? फॉर द लिथियम टू नाइट्रोजन, ठीक है, अप टू द 14 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, नेक्स्ट पेज पे। यस, दिस इज फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्रॉम ऑक्सीजन टू नियॉन, ऑक्सीजन से नियॉन जैसे 40 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे तब ये क्या हो जाता है? सिग्मा 2pz, पी ऑर्बिटल है, पी में जो सिग्मा 2pz है वो कहाँ आ जाता है? लोअर एनर्जी पे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो एनर्जी सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ये क्या है? हायर है किससे? पाई जो अप टू 40 इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हायर देन द पाई 2px एंड पाई 2py। ठीक है, अब ये रिवर्स ऑर्डर क्यों हो जाता है? बिकॉज इन केस ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, यानी कि ऑक्सीजन जैसे ही 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द डिफरेंस इन द एनर्जीज बिटवीन द 2s and 2p atomic energy levels is large। क्यों? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में क्या होता है? जो 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी लेवल में डिफरेंस होता है, वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी लेवल्स ऑफ सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सो क्लोज that the repulsive forces operating between the electrons present in them raise the energy level of pi 2p molecular orbital above the sigma। यानी कि जो आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p है, ठीक है, और ये सिग्मा सिग्मा बॉन्डिंग 2pz और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, जो कि आपका किसमें अगर आप अप टू द 40 इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो ये क्या है? लेकिन जैसे मतलब पास पास है, लेकिन जैसे ही 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अभी आप देखेंगे एंटी बॉन्डिंग। जब तक 40 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो केवल बॉन्डिंग तक जो है वो पी ऑर्बिटल की बॉन्डिंग में ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, लेकिन जैसे 40 से ज्यादा होता है तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही ऊपर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो रिपल्शन फोर्स वर्क करता है। तो क्या होता है? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन के केस में ये सिग्मा 2pz और पाई 2pz में क्या होता है? ये फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करता है, जिससे रिपल्सन से ये क्या होता है? जो 2pz ऑर्बिटल है वो आपका बॉन्डिंग का ये नीचे आ जाता है ना। तो अभी आपको एग्जांपल देखेंगे, देखिए जैसे आप देखेंगे जैसे ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट होते हैं तो बस ऑक्सीजन का भी फुल, जब 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी एंटी बॉन्डिंग में पी में फिलिंग स्टार्ट होती है, और उसके बाद ही जो है सिग्मा 2pz में फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करता है, और जिसकी वजह से ये क्या होता है? ये ऑर्बिटल जो है वो आपका लोअर एनर्जी पर आ जाता है। ठीक है, so this is about the explanation of the molecular orbital energies of the molecular orbital। Now come to the filling of the electrons। N2 molecule, ठीक है, N2 molecule बेटा एक पेज, हाँ ये N2 पर आओ, एक और ऊपर, यस, हाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास क्या है? 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
तो 40 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन से स्टार्ट करें क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी से कम वाले आपको समझ में भी आ जाएंगे। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का कितना है, 1s2 2s2 2p3। You can write the electronic configuration of nitrogen 1s2 2s2 2p3। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14। ठीक है। सो एक नाइट्रोजन के देखिए, वन लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली इन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, राइट हैंड साइड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। ये दोनों ओवरलैप करके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनको की सेंटर में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चूंकि दोनों एटम सेम है, ये क्या है, दीज आर दी होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी कि दोनों एटम सेम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, beryllium, boron, all the atoms in all these examples, both the atoms are same, means a molecule is homonuclear diatomic molecule. So atomic orbital का energy level भी same रहेगा, same line पे draw करोगे दोनों atomic orbital left hand side और right hand side, यानी कि 1s सेम एनर्जी सेम लेवल पे ड्रॉ होंगे, 2s के एटॉमिक ऑर्बिटल सेम लेवल पे ड्रॉ होंगे, 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों एटम्स के सेम लेवल पे ड्रॉ होंगे। सो 1s में दोनों एटम्स के पास 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s 2s में और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। नाउ सी द फिलिंग। सबसे पहले किस में जाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए, सिग्मा 1s में, उसके बाद 2 कहां गए, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सिग्मा 2s, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहां पर होगी, पहले जो वुन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, पहले दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल फिल होंगे। ठीक है, सिग्मा पाई 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, देन थर्ड इलेक्ट्रॉन टू द पाई 2px एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन टू द पाई 2py, fifth electron to the sigma 2pz and sixth electron to the sigma 2pz. So you can write down the electronic configuration for this nitrogen molecule is sigma 1s2, sigma anti-bonding 1s2, sigma 2s2, sigma anti-bonding 2s2, pi 2px2, pi is equal to pi 2py2, sigma 2pz 2 electrons. This is the electronic configuration. अब सपोज यही अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसके लिए ड्रॉ कर रहे होते, कार्बन के लिए, C2। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन से स्टार्ट करें। हाइड्रोजन में क्या है, इसके पास एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अभी नाइट्रोजन में रहो बेटा, नाइट्रोजन में रहो, आई एम गिविंग यू ये आप, अब आप ड्रॉ करो, हम आपको देंगे कंपाउंड्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स आपको देंगे तो आप ड्रॉ करोगे। इसको समझो बेटा, आप डायग्राम बनाते जाओ, यू कैन टेक योर ओन टाइम, आई कैन वेट हियर। तो आप डायग्राम बनाते जाओ फॉर दी बोरॉन B2, B2 के लिए ड्रॉ करो, एटॉमिक नंबर इज 5, फाइव के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, यानी कि अब आप पहले डायग्राम ड्रॉ करिए। बोरॉन के दोनों 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों बोरॉन एटम के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और p में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन। ड्रॉ कर लिया बच्चे, you can write in chat box. For boron molecule B2,
ड्रॉ हो गया बेटा। अब देखिए बोरॉन के लिए ये जो है इसमें क्या होगा आपका मॉलिक्यूलर डायग्राम, जैसे N2 का है इसको B2 के लिए ड्रॉ करेंगे तो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब P में दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1 to the pi 2px एंड दूसरा pi 2py पे। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 plus 2 plus 2 6 and anti-bonding electron 4. What is the bonding order? Half One. Nb minus Na। One. तो क्या हो जाएगा हाफ, बॉन्डिंग में कितने हैं 6, Bonding 6, anti-bonding anti-bonding 4, में 4, 6 minus 4 half divided 6 by 2 minus is equal to 1. 4, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1। यानी कि बोरॉन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। नाउ कम टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन केस ऑफ बोरॉन, पाई 2px और पाई 2py दोनों में क्या है, both are half filled. It means there is a presence of unpaired electron. So unpaired electron होने की वजह से क्या है, Paramagnetic. this molecule will be paramagnetic in nature. और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में क्या है, नाइट्रोजन का तो फिलअप है, सभी का फिल हो गया बेटा। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। ओके साहिल अहमद, वेरी गुड, बॉन्ड ऑर्डर इज 1। and the molecule will be paramagnetic. In case of nitrogen, नाइट्रोजन में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करिए नाइट्रोजन का, बॉन्ड ऑर्डर इज 3। half of the bonding electron 2 to 4 6 10, 10 minus 4 it will be 3, the bond order is 3 and all the electrons are paired, means the molecule will be diamagnetic. Okay, suppose in case of ions, अगर हम ये N2 प्लस के लिए आपको बोले, N2 प्लस में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज 14, लेकिन N2 प्लस 1 चार्ज मींस देयर इज अ लैक ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये कहां से, सिग्मा 2pz हायर एनर्जी पर है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन एटम से नहीं निकलता है, किससे निकलेगा, मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कम दिखाना पड़ेगा आयन में। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन विल बी लेस इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो N2 molecule is diamagnetic where N2 plus is the paramagnetic because 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, 13 का मतलब क्या हुआ, सिग्मा 2pz में there will be 1 electron, so this molecule will be paramagnetic or this ion will be paramagnetic. बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा जरा निकालिए, 2.5 N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, N2 प्लस 1 का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 plus 2 plus 5, 5 4 9, 9 minus 4 2.5, bond order will be 2.5. ठीक है, so this is the
मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब ये आप ऑक्सीजन वाले पे आ जाओ बेटा, थोड़ा सा ऊपर करो अंशुमन। देखिए ऑक्सीजन में क्या हो गया, यू कैन सी इन द ऑक्सीजन कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब ये जो सिग्मा 2p z होता है, इसमें क्या करता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। तो सिग्मा 2p z कहाँ गया, लोअर एनर्जी पे। जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, यानी कि जहां पर 15 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो क्या होगा, 14 से ज्यादा 15, यानी कि आयंस के केस में अगर O2 प्लस के लिए आप ड्रॉ करोगे, देन देयर विल बी 15 इलेक्ट्रॉन। so the order of energies of these orbital will remain like this: sigma p, sigma 2p on the lower energy, and pi 2px and pi 2py on the higher energy. So for oxygen, if I ask a question from you that on the basis of MOT, please explain whether explain the molecule of nitrogen is diamagnetic, whereas oxygen is paramagnetic. Why? Can you explain on the basis of MOT? Yes, ma'am, you can explain, because in oxygen unpaired electron है. oxygen molecule electron makes oxygen molecule whereas all the electrons are paired. That's why the molecule will be diamagnetic. And the bond order of this oxygen molecule will be 2. Okay. Now come to the formation of some more ions. ठीक है, ये आपकी केवल क्या ड्रॉ की है हमने, बॉन्डिंग एंड डिबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन 1s को इसमें कंसीडर कर लिया है कि 1s है, 1s के आगे से फिलिंग दिखाई गई है। देखिए व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, देन यू कैन एग्जाम द 1s ऑर्बिटल। 2s से भी आप काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1s में तो पता ही आपको उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 दोनों में ही होंगे, तो 1s को आप एग्जाम कर सकते हो, 2s से स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट काउंटिंग, और 2s से डायग्राम भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो N2 मॉलिक्यूल में क्या है, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा पाई 2px, पाई 2py एंड पाई 2pz। बॉन्ड ऑर्डर इज 3। अब N2 प्लस में क्या हो गया, देखिए 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s तो फिल हो गया। इसके बाद क्या आया, N2 प्लस का मतलब कितना हो गया, देयर आर 13 इलेक्ट्रॉन्स, 30 इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन 13 निकलेगा कहां से, ये किससे निकलेगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल से। एटम्स में आप उतने जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें आप उतने सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, बट विड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन will be from the molecular orbital. So you will draw one electron in molecular orbital, जबकि atomic orbital में number of electron जो है आपके 2p3 ही रहेंगे दोनों में। So sigma 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद N2 -1 चार्ज, N2 -1 चार्ज, -1 में क्या होगा, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया आपका, कहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में आ गया। तो दोनों नाइट्रोजन के पास आप 3 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्डर पे ड्रॉ करेंगे, जबकि पाई एंटी बॉन्डिंग पे 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। सो बॉन्ड ऑर्डर N2 माइनस का कितना हो गया, 2.5, 8 - 3। इसके बाद फॉर N2 2 माइनस, N2 2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्डर, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, 2 माइनस का मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फॉर द 16। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए आपके, एंटी बॉन्डिंग में आ गए, ठीक है, एक्सिस, एंड द बॉन्ड ऑर्डर इज 2। सो द you can see the only the nitrogen molecule is diamagnetic in nature, whereas all the ions of the nitrogen N2 + 1, N2 - 1, N2 - 2, all are the paramagnetic in nature. Okay, so these all are the diagrams for the homodiatomic
homonuclear diatomic molecules. So you can write some homework. You have to draw the molecular energy diagram for the Li2 molecule, lithium molecule, beryllium molecule, boron molecule, C2 molecule. मैम लास्ट क्या बोल रही हैं? तो इसमें से आपको बताना पड़ेगा कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं एग्जिस्ट करना करेगा. मैम राइट, एक बार दोबारा draw बता the दीजिए. molecular orbital for these molecules Li2, Be2, B2, C2. Calculate their bond order. Comment on their existence and magnetic behavior. Comment on their existence and magnetic behavior. हम सारे एग्जिस्ट करेंगे. Next is the molecular orbital diagram for the heteronuclear diatomic molecule. Heteronuclear यानी कि molecule जिसमें कि दो different atoms. Molecule which is formed by the combination of two different atoms, like the NO, nitric oxide, carbon monoxide, HF. यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल भी सेम नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स इज नॉट सेम. सी द नाइट्रिक ऑक्साइड. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स मोर स्टेबल. तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वो लोअर एनर्जी पर होगा. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज लेस देन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि नाइट्रोजन जो है वो स्लाइटली हायर बनेगा किससे? ऑक्सीजन एटम से. यू कैन सी ऑन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड नाइट्रोजन ऑन द लिटिल बिट हायर एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल. ठीक है. इसके बाद एमओ दोनों से ही नीचे होगा, ऑक्सीजन से भी लोअर एनर्जी पर होगा. दिस इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1s2 2s2 2p3. और ऑक्सीजन के पास 1s2 2s2 2p4. बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8. तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2s तो फिल हो गया, 1s भी नीचे इसके फिल हो गया, 2s भी फिल हो गया. 2p में जब आएंगे तो 2px 2py 2pz. ठीक है. तो सबसे पे 15. तो जब मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो क्या हो जाएगा? ये सिग्मा 2pz नीचे आ गया लोअर पे. तो पहले सिग्मा 2pz में दो okay. So this last electron will go to the pi anti-bonding orbital. So यहाँ पे आप main thing you have to keep in mind that you have to draw the atomic orbital at different energy levels. Similarly, in case of HF molecule, HF का जो diagram होता है that is a distorted shape. क्योंकि HF में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? HF का क्या है? फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो सिग्मा 1s
sigma 2s2, sigma 2pz, pi 2px, pi 2p y. तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो अब ओवरलैपिंग किसमें किसमें होगी? यहाँ पर देखिए, जो आपका क्या है, फ्लोरीन का 2p, इसकी एनर्जी बहुत कम होगी. ये जस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और मींस देयर इज electronegativity difference between the hydrogen and fluorine is so much high कि this diagram will attain a distort shape. कि मॉलिकुलर जो फ्लोरीन की एनर्जी है दैट इज नियर अबाउट द मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और जो हाइड्रोजन की एनर्जी है वो किसके है, दैट इज equal to that is near about the anti-bonding molecular orbital. So by this way the distorted shape molecular orbital diagram of HF will be formed. Next example is the carbon oxide CO molecule. CO में भी है the electronegativity difference, NO और CO में the electronegativity between the carbon and oxygen and nitrogen and oxygen will be different. जहां पर NO आपने बनाया था तो ये कार्बन थोड़ा सा और ऊपर बनेगा नाइट्रोजन से, क्योंकि electronegativity difference between the carbon and oxygen is more as compared to the nitrogen and oxygen. So you can see the diagram. You can see the diagram CO का 1s 1s तो फिल हो गया, दोनों के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 2p में 2p, कार्बन atomic number of carbon is 6, so in 2p there will be 2 electron, but in oxygen there will be 4 electron. So this 2s तो फिल हो गया, अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, 14, 6 और 8 14, तो 40 इलेक्ट्रॉन के लिए पाई 2p आपकी लोअर एनर्जी पे होंगे, 2p से हायर एनर्जी पे होगा. तो पाई 2px पाई 2py में भी एक एक इलेक्ट्रॉन, थर्ड एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन, देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन टू द सिग्मा 2pz. So you can see here that this molecular orbital theory also explain the formation of a coordinate bond. क्योंकि CO में क्या होता है, जब आप CO में आप बॉन्डिंग बनाएंगे तो क्या देखेंगे कि दो बॉन्ड आपके क्या है, कार्बन को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऑक्सीजन कार्बन को C2. अब ऑक्सीजन इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, 2 और 4, इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना. तो अब जब दोनों एक एक बॉन्ड बना लेते हैं तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गई. अब अगर तीसरा एक बॉन्ड और बनता है तो कार्बन तो बना सकता है लेकिन ऑक्सीजन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है. और ये जो है विद दिस डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन व्हिच द बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय दिस ऑक्सीजन एटम. सो what is the difference, what are the drawbacks of the valence bond theory? That valence bond theory does not explain the magnetic behavior of the molecules, does not explain the formation of ions, and does not explain the formation of the coordinate bond, whereas molecular orbital theory explains the formation of a coordinate bond, formation of ions, and also comment on the magnetic properties of the molecules. So this is all about the molecular orbital theory. So there is some work for you. You have to draw the molecular orbital diagram for the CN molecule. CN molecule, CN -1 charge. Note down the molecule CN -1, NO +1, NO -1,
Cn minus 1, NO plus 1, NO minus 1, and Cn plus 1. You have to practice, draw these molecular orbital diagrams. In next class, we'll discuss some more examples, and we'll end up with this unit. So this is all about for today's class. Now I'm going to over the class. Okay, students. Bye. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.